Kirtan ki jai. So thank you everyone for participating in this Kirtan. So when you sing the Kirtan and when you clap your hands, when you sing, all your sinful activities which you have done from so many lifetimes, it will be vanquished. Okay. And when you clap your hands, some good रेखाएं हाथ पे आ जाएंगी तो पूरे घर में वो चले जाएंगे. That's why we clap and we sing. Okay. So now we have Madhav Vrindan Prabhu. So he has come with us. So who are new here? You are meeting first time Will Learning session. So Madhav Prabhu is official advisor of this voice, and he has been from around past 18-20 years. He's been doing seminars and different workshops in various engineering colleges, medical colleges, schools, the contests, and he has come among Bhagavad Gita distributors all over the world. So he likes to distribute Bhagavad Gita to many people. He distributes and gives many wonderful seminars in colleges, stress management, time management, art of mind control, from Bhagavad Gita, how it is scientifically, it means we can apply it in our life in that way he does. And he has done many other things. So welcome Madhav Prabhu for today's session. Hare Krishna. So all the online devotees, you all can also come offline and join the session. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Rama. Hare Rama. So I welcome all the devotees, those that are online, join online. I think attendance are little poor. So Abhishek Gupta. So please give your attendance. Attendance in charge is requested to take attendance. Hare Krishna Prabhuji. Krishna Prabhuji. था तो आने में और लेट हो जाएगा तो लग रहा था, तो बहुत जैम था माँ फ्लाईओवर के ऊपर, तो आने में इसलिए देरी हो गया। और जो लोग टाइम पे आए हैं तो आप लोग को धन्यवाद आने के लिए, especially in this auspicious occasion of the divine appearance of Lord Nrsimhadev. Hari Bol. तो मैं हिंदी में बोलूंगा कि सभी भक्तों को समझ में आए। हालांकि मेरा हिंदी बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन काम चल जाता है। तो हम लोग शॉर्ट प्रेयर्स and then we'll dive into the topic. Okay? तो फर्स्ट टाइम आए, ओके, आप ही तो आगे से, ओके, आप सभी लोग हैं, ओके, तो आप सबको स्वागत करते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, जो लोग बहुत दिन बाद आए हैं, तो भी स्वागत करते हैं। 3 बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। So this is a traditional way to welcome the guest or the devotees. So we'll recite prayers. Om Ajnanatimidandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamaiham Dadati Shapadantikam. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namne. नमस्ते स्वारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाणी आश्चार्यदेशकारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
भावधन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोपतिष्य नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय देवम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। So it is said, ऐसे बताया गया है शास्त्र में कि जहां पर भगवान के नाम और भगवान के गुण, भगवान के लीला का कीर्तन होता है, जहां पर भगवान के महिमा का कीर्तन होता है, वो स्थान तीर्थ में बदल जाता है। हरि बोल। ऐसे कहा गया शास्त्र में, तीर्थ कहाँ पर है। तो युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न पूछा था जक्ष। आपने वो 5 टाइम सुना है, युधिष्ठिर महाराज और 5 पांडव लोग पानी पीने के लिए गए थे और सभी लोग अज्ञान हो गए थे। तो जक्ष ने पूछा था बहुत सारा प्रश्न, उसमें से एक प्रश्न था तीर्थ कहाँ पे। तो युधिष्ठिर महाराज का आंसर था जहां पर भगवान के भक्तगण या महात्मागण भगवान के गुण महिमा का कीर्तन कर, तो वहां तीर्थ निवास करते हैं। नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदये शुभा योगिनां हृदये शुभा, ना कि मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। हालांकि भगवान वैकुंठ में ही रहते हैं और विशेष करके योगियों के हृदय में रहते हैं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि मैं इधर नहीं रहता हूं। क्यों बोल रहे हैं कि भगवान कुछ एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, भगवान कुछ एम्फसाइज करना चाहते हैं। वो क्या? न मत भक्त तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति किसी मंदिर में जाते हैं, कोई तीर्थ में जाते हैं, लेकिन भगवान की गुणगान नहीं सुन के आ जाते हैं, तो ऐसे कहा गया है तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मतिरो भ्रम सर्व सिद्धि गोविंद चरम। अगर बहुत सारे तीर्थों को घूम के आ जाता है, लेकिन भगवान के भक्तों के श्रीमुख अरविंद से भगवान नहीं करते हैं, तो तीर्थ यात्रा केवल ही परिश्रम, इसको बोलते हैं सिंपली वेस्टेज ऑफ टाइम, श्रम एवं ही। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि वी कम टुगेदर एंड श्रवण सुन रहे ना। तो जब भगवान के उसके पहले दिन, उसके एक दिन पहले अधिवास उत्सव मनाया जाता है। अधिवास तो इसी उत्सव का किसी भी इस्कॉन मंदिर में बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है उसके पहले दिन। तो भगवान को अलग अलग ऑस्पिशियस इंग्रेडिएंट ऑफर किया जाता है और बहुत सुंदर कीर्तन, भोग ऑफरिंग, आरती होता है। इस अनुष्ठान के उद्देश्य है कि हम लोग अगले दिन के लिए हम लोग अपने हृदय को तैयार करें, अगले दिन के लिए अपने हृदय को तैयार करें कि अगले दिन हम लोग भगवान की आविर्भाव तिथि को बहुत
अच्छे तरीके से हम लोग मना सके। कल संडे है और महीने में कितना संडे आता है? 4 संडे, और साल में तो पूरे साल में 52 संडेज आता है। तो बाकी संडे और इस संडे में क्या फर्क है? बाकी संडे और कल का संडे में क्या फर्क है? क्या फर्क है आशीष? क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस? प्लीज बताइए, क्या फर्क है? बहुत सिंपल आंसर है, जल्दी 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 बोलिए। नरसिंह का अवतार है। यस, क्योंकि काल के संडे में भगवान श्री नरसिंह देव प्रकट हुए हैं। अबाउट करने के लिए अपने हृदय को, अपने मन को तैयार करते हैं। और सबसे अच्छा तरीका है तैयार करने के लिए अपने हृदय को कि अगर हम लोग भगवान के बारे में सुने, अगर हम लोग भगवान के बारे में सुने तो तब क्या होगा? हम लोग भगवान को हमारे हृदय में बहुत अच्छे तरीके से स्वागत कर सकते हैं, और काल का दिन हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मना सकते हैं। जैसे एग्जाम होता है तो उसके बहुत पहले से हम लोग अपने आप को तैयार करते हैं। तो उसी प्रकार जब भगवान प्रकट होते हैं तो हमें भगवान को स्वागत करने के लिए हमारे जीवन में अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। तो हम लोग सुन चुके हैं बहुत बार, जो लोग ऑलरेडी कनेक्टेड हैं आप लोग जानते हैं, या जो लोग नहीं भी कनेक्टेड हैं तो भी हम लोग कम ज्यादा जानते ही हैं कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं। भगवद गीता में भगवान ने कहा है, क्या कहा है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान के आविर्भाव के पीछे 3 कारण है। परित्राणाय साधूनां, साधुओं को परित्राण करने के लिए, उनके भक्तों को परित्राण करने के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्, दुष्कृतियों की 2 प्रकार के व्यक्ति है, दुष्कृति और सुकृति। गीता में भगवान नौमां दुष्कृति न मूढ़ा पपद्दन्त नराधमा मायाया अपहृतो ज्ञान आशुरं भावमाश्रितम्। 4 प्रकार के व्यक्ति मेरा शरणागत नहीं होते, उसको क्या कहते हैं? दुष्कृति। और सुकृति, 4 प्रकार के सुकृति है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति न अर्जुनो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत। तो 4 प्रकार व्यक्ति मेरा शरणागत होता है, आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। इसमें से कौन श्रेष्ठ है? ज्ञानी। तो परित्राणाय साधूनां, साधुओं को परित्राण करने के लिए, दुष्कृतियों को विनाश करने के लिए, और धर्म की स्थापना करने, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अभी आचार्यगण बताते हैं कि ये जो 3 कारण है, ये जो 3 कारण है, ये भगवान के आविर्भाव का गौण कारण है। भगवान के आविर्भाव के सेकेंडरी कारण है। तो प्राइमरी कारण क्या है? ये जो 3 कारण है, इसको पुष्टि करने के लिए भगवान को हमेशा स्वयं आना नहीं पड़ता है। भगवान दूसरे किसी तरीके से वो कर सकते हैं। तो जैसे असुरों को विनाश करने के लिए भगवान को हमेशा खुद आना नहीं पड़ता है।
तो भगवान दूसरे किसी के द्वारा उनको मार सकते हैं या हार्ट अटैक कर सकते हैं उनके हृदय, है कि नहीं? तो किसी भी तरीके से उनको मार सकते हैं। तो भगवान के आविर्भाव का मुख्य कारण क्या है? तो श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम तनुमास्थितम। तो अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम तनुमास्थितम भजते तदृशी क्रीड़ा जश्रुत्व तत्परो भवेत्। किस लिए आते भगवान के आविर्भाव के मुख्य कारण क्या है? अनुग्रहाय भक्तानां, भक्तों को अनुग्रह करने के लिए, उनके भक्तों को अनुग्रह करने के लिए। मानुषम देहम आस्थितम, भगवान मनुष्य के जैसे शरीर धारण करके आते हैं और क्या करते? भजते तदृशी क्रीड़ा, और उनके भक्तों के साथ एक क्रीड़ा या लीला विलास करते हैं। और जब उस भगवान के लीला के बारे में हम लोग श्रवण करते, जो श्रुत्व, जब हम लोग श्रवण करते तो तब क्या होता है? तत्परो भवेत्। तो जब हम लोग सुनते हैं तो हम लोग भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाते हैं। तो भगवान आते हैं इस दुनिया में उनके प्रिय भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, उनके प्रिय भक्त के साथ आदान प्रदान करने के लिए। और जब आदान प्रदान करने के लिए आते तो 2-3 असुरों को मार भी देते हैं। जैसे हम लोग मुचकुंद का लीला उस दिन सुन रहे थे, मुचकुंद की लीला सुन रहे थे। तो मुचकुंद पर्वत में गुफा में सोए हुए थे और वो भगवान के भक्त थे पहले से, तो भगवान का कृपा प्रार्थना किए थे और भगवान उनको दर्शन दिलाना चाहते थे, भगवान उनको दर्शन प्रदान करना चाहते थे। और उस तरफ काल जवन था, वो भगवान को मारना चाहते थे। और भगवान ने क्या किया? भगवान उसके सामने दौड़ के जा रहे, दौड़ के नहीं, पैर ऐसे चल रहे थे और रहा था और इतना जोर से और पकड़ नहीं पा रहा था, तो बहुत गुस्सा हो गया। बोले, अरे डरपोक, क्यों भाग रहे हो? हाँ, अगर क्षत्रिय हो तो युद्ध करो मेरे साथ। कृष्ण कुछ बोल नहीं रहे, तो कृष्ण आगे पैदल चले जा रहे और उसको पकड़ ही नहीं पा रहे। तो बहुत आगे चले गए कृष्ण, आगे चल के गुफा के अंदर घुस गए। और गुफा के अंदर घुस गए तो गुफा के अंदर घुस गए और जब काल जवन घुसा गुफा के अंदर तो देखा कि कोई सोया हुआ है और उसने सोचा कि कृष्ण सोया हुआ है। बोले, डरपोक, सोए हुए हो? क्षत्रिय हो ना गाय चराने वाले हो? तो काल जवन ने सोचा कि कृष्ण डर के मारे उधर सो गए हैं कंबल ओढ़ के, लेकिन कृष्ण ने एक्चुअली क्या किया? कृष्ण अंदर घुस के गुफा के साइड में आ गए, अंदर घुस के साइड में आ गए। जैसे आप दरवाजे से अंदर घुस के साइड में चले जाएंगे तो आगे वाला व्यक्ति देख नहीं पाएगा, तो कृष्ण भी साइड में आ गए। और काल जवन ने सोचा कि कृष्ण उधर सोए हुए, तो एक लात मारा काल जवन ने लात मारा। तो असल में उधर सोया हुआ था मुचकुंद, और मुचकुंद को वरदान प्राप्त हुआ था कि अगर उसके नींद कोई डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है, और वो जिसको देखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो मुचकुंद तो उसको लात मारा, मुचकुंद ने अपना कंबल ओढ़ा, देखा कि उधर काल जवन खड़ा हुआ, तो काल जवन पूरा भस्म हो गया। तो इस प्रकार कृष्ण एक कार्य के द्वारा बहुत सारे कार्य को साधन करते हैं। तो कृष्ण असल में प्रकट होते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद आह्लादो दायिने। तो प्रहलाद महाराज को आह्लाद या आनंद प्रदान करने के लिए भगवान नरसिंह देव के रूप में आधा नर और आधा सिंह, आधा मनुष्य और आधा सिंह के रूप में पिलर से प्रकट हुए थे। तो हम लोग डिटेल सुनेंगे कल हमारे सेकंड पार्ट 2 में। हम लोग सुनेंगे किस प्रकार भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज के वचन को सत्य प्रमाण करने के लिए सत्यम विधातुम निज भृत्यवासितम, सत्यम विधातुम निज भृत्यवासितम, अगला लाइन,
अगला लाइन में भूल गया। तो सत्यम विधातुम निज भृत्यवासितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना। जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त रहते हैं वो भगवान, जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में प्रकट रहते हैं, वो भगवान सत्यम विधातुम निज भृत्यवासितम, अपने भृत्य प्रहलाद के वचन को सत्य प्रमाण करने के लिए। प्रहलाद महाराज को पूछा हिरण्यकशिपु कि तुम्हारा भगवान कहाँ पे है? बोले हर जगह में है। बोले इस पिलर में है क्या? बोले पिलर में भी है। तो हिरण्यकशिपु ने क्या कहा? अपने गदा से उस पिलर को तोड़ दिया, और जब भी तोड़ दिया तो पिलर से प्रकट हो गए, आधा नर आधा सिंह के रूप में। तो प्रहलाद, तो भगवान नरसिंह देव आने के मुख्य कारण नहीं था हिरण्यकशिपु। तो आने के मुख्य कारण क्या है ना? प्रहलाद के वचन को सत्य प्रमाण करने के लिए कि प्रहलाद महाराज ने कहा है, उनके भक्त ने कहा है कि भगवान इधर है। और दूसरे ओर कौन वचन दिया था? ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वरदान दिया था, दिन में नहीं मरेंगे, रात में नहीं मरेंगे, अस्त्र से नहीं मरेंगे, शस्त्र से नहीं मरेंगे, देवता से नहीं मरेंगे, आपके सृष्टि के कोई भी जीव से नहीं मरेंगे। समझ में आ रहा है? सुबह नहीं मरेंगे, रात को नहीं मरेंगे, जल में नहीं मरेंगे, स्थल में नहीं मरेंगे। तो ब्रह्मा जी भी भगवान के भक्त हैं। तो ब्रह्मा जी के वचन को भी सत्य करके भगवान ऐसे प्रकट हो गए कि उनके भक्तों का वचन बना रहे। तो ये भगवान की विशेषता है। भगवान के अनंत गुण में भगवान अखिल रसामृत मूर्ति, भगवान गुणार्णव, गुण के सागर है। तो ऐसे लिखा गया है शास्त्र में कि भगवान के जो अनंत गुण है, अगर पूरे पृथ्वी में जितने धूली कणा है, धूल है, उसको बहुत सारे जन्मों से अगर गिनती करके काउंट कर लिया जाए, फिर भी भगवान के गुणों का काउंट कोई कर नहीं पाएगा। तो ये मुच्चकुंद के सेक्शन में ही बताया गया है। तो इस अनंत गुण में भगवान के सर्वश्रेष्ठ गुण है भगवान के भक्त वात्सल्य, के भगवान के भक्तों के प्रति जो उनकी जो प्रीति है, भक्तों के प्रति जो उनकी जो प्रेम है, वो भगवान के सर्वश्रेष्ठ गुण है। तो इस प्रकार भगवान प्रहलाद महाराज के वचन को सत्य प्रमाण करने के लिए और ब्रह्मा जी के वरदान को सत्य प्रमाण करने के लिए ऐसे अद्भुत रूप लेके भगवान प्रकट हुए। तो इस प्रकार अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहम आस्थितम भजते तदृशी क्रीड़ा यश श्रुत तत्परो भवेत्। तो भगवान इस प्रकार लीला करते हैं उनके भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। तो ये भगवान के आविर्भाव के मुख्य कारण है। और जब भगवान भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आते तो 2-3 असुरों को जो उसको मारना है मार भी देते। और जो व्यक्ति इस भगवान के लीला को श्रवण करते हैं, भगवान की लीला का दर्शन करते, श्रवण करते हैं, उनका क्या गति होता है? जस श्रुतो तत्परो भवेत्। तो उनको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान जब आते हैं तो भक्तों को आनंद विधान करने के लिए आते, असुर को वध कर देते, धर्म की स्थापना भी हो जाता है। और जो लोग इस भगवान के बारे में श्रवण करते, भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, तो उनका क्या गति होता है? उनका भगवत धाम प्राप्ति होता है। इसका अर्थ है परित्राणाय साधुनाम, साधु की परित्राण भी हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार भगवान के आविर्भाव के प्राइमरी कॉज एंड सेकेंडरी कॉज है। कुंती महारानी भगवान जब चले जा रहे तो भगवान प्रार्थना कर रही थी। तो उसमें एक प्रार्थना में कुंती महारानी कह रहे हैं कि भगवान आप अजन्मा है, भगवान अनबॉर्न है।
अजो पिशन अव्ययात्मा, भगवान खुद गीता में कहते हैं मैं अनबॉर्न हूं, अजो। तो आप अजन्मा हैं, लेकिन फिर भी आप अलग अलग जोनी में, अलग अलग जोनी में प्रकट होते हैं। तीर्यन निशिशु आदिशु तजत दंत विडंबना। ये मेरे लिए समझना बहुत कठिन है कि आप अजन्मा हैं, आपका जन्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं अलग अलग जोनी में। तो उसमें कुंती माँ ने उदाहरण देती है, जैसे एक्वाटिक्स जोनी में मत्स्य अवतार के रूप में, उसी प्रकार पशु जोनी में बराहदेव के रूप में, नरसिंह देव के रूप में, फिर तीर्जन ऋषिशु, ऋषि निशी, नृ मतलब राजा, रामचंद्र के रूप में, फिर ऋषि के रूप में कौन सा ऋषि? परशुराम। कपिल मुनि। कपिल देव भगवान है। ऋषि मतलब नर नारायण ऋषि। तो तीर्यन ऋषिषु आदिषु तदत्यंत विडंबनम। ये बहुत ही बिविल्डरिंग है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है कि कैसे आप अनबॉर्न हैं लेकिन आप अलग अलग जोनी में जन्म लेते हैं। तो ये भगवान के अचिंत शक्ति है कि भगवान अजन्मा है। असल में भगवान अजन्मा है और आत्मा भी अजन्मा है। आत्मा क्योंकि भगवान की अंश है, आत्मा भी अजन्मा है। लेकिन जब आत्मा भगवान को भूल जाते और इस भौतिक जगत में आते तो उनको शरीर परिवर्तन करना पड़ता है। एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, अलग अलग शरीर, 84 लाख जीव प्रजाति में भटकना पड़ता है। लेकिन भगवान का जो आविर्भाव, भगवान की जो जन्म है, वो साधारण मनुष्य के जैसा नहीं है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्ततः। तो भगवान के आविर्भाव, भगवान के जो कार्यकलाप वो दिव्य है, साधारण मनुष्य के जैसा नहीं है। इस भौतिक जगत में मनुष्य काम कार्य करते किस प्रकार? गुण के प्रभाव से, रजो तमो गुण के प्रभाव से, और काम क्रोध लोभ मोह इसके द्वारा प्रभावित होकर, इसके इन्फ्लुएंस में लोग काम करते हैं। प्रकृति के गुणों के अधीन होकर लोग काम करते हैं। लोग अपने आप को डूअर मानते हैं, कर्तरहम इति मन्यते, लेकिन एक्चुअली गीता में भगवान कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तर अहम इति मन्यते। मिथ्या अहंकार के द्वारा भ्रमित होके, अहंकार विमूढ़ आत्मा, बिविल्डर होके लोग अपने आप को कर्ता मानते हैं। असल में लोग, हर जीवात्मा इस भौतिक जगत में प्रकृति के 3 गुण के अधीन है और उस 3 गुणों के द्वारा लोग कार्य करते हैं। लेकिन भगवान गुणातीत, भगवान इंद्रियातीत, अधोक्षज, भगवान मायाधीश। तो भगवान इस दुनिया में जब आते हैं, हम आपके जैसा नहीं आते हैं, अपने कर्म फल को भोगने के लिए नहीं आते हैं। भगवान नामं कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम अभिजानाति कर्मभिर्नाश बद्धते। भगवान बोलते नामं कर्माणि लिप्यन्ति, मैं किसी कर्म में लिप्त नहीं होता हूं। न मे कर्म फले स्पृहा, नाइदर आई हैव डिजायर टू एंजॉय द रिजल्ट ऑफ वर्क। न मे कर्म फले स्पृहा, किसी कर्म फल भोगने की कोई वासना नहीं है मेरा, ना कि भगवान को इस दुनिया में कोई काम है। समझ में आ रहा है? तो नमाम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। भगवान आते हैं इस श्लोक के बाद भगवान बोलते इसलिए आते हैं, जो साधुना विनाशाय च दुष्कृतम, धर्म संस्थापनार्थाय। भगवान का अपना कोई कार्य नहीं है इस दुनिया में आने के लिए। भगवान हम सभी जीवों को उद्धार करने के लिए आते हैं।
तो इसलिए भगवान के जो कार्य हैं उसको कर्म नहीं कहते हैं, समझ में आ रहा है? भगवान के जो एक्टिविटीज हैं वो दिव्य हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं, इसलिए उसको लीला कहते हैं। नमाम कर्माणि लिप्यन्ते न मे कर्मे फले स्पृहा इति माम अभिजानाति, जो इस प्रकार जानते हैं मेरे एक्टिविटीज और कार्यकलाप को, जो जानते हैं कर्म भी नाशो बद्धते, उसको भी कर्म बंधन नहीं होता है। हरि बोल। इसका मतलब है कि अगर आप भगवान को सही तरीके से जानोगे तो आपका जन्म कर्म की जो बंधन है वो, गीता के चौथा अध्याय के 9 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः, जो जानते हैं अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर, तत्वतः, तत्व मतलब सत्य या फिलोसॉफिकली, जो सही तरीके से जानते हैं भगवान को इन ट्रूथ तत्वतः, तो त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सहर्जुनो, तो शरीर छोड़ने के बाद त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति, उनको दोबारा पुनर्जन्म नैति मतलब पुनर्जन्म नहीं होगा। तो भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं गीता में, गीता सारे वेदों की साराधिसार है। तो सर्व उपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदना, सारी उपनिषद की साराधिसार है। तो अगर कोई शास्त्र आपने नहीं पढ़ा लेकिन गीता पढ़ लिया तो आपने सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है वो आप प्राप्त कर जाओगे। तो इस गीता, क्यों गीता इतना स्पेशल है? क्योंकि गीता भगवान के मुख निश्रित वाणी है। स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिश्रिता, भगवान के मुख कमल से आई है। जैसे गंगा जी भगवान के चरणों से आई है। गंगा में लोग नहाने के लिए जाते हैं करोड़ करोड़ किलोमीटर। गंगा सागर का मेला होता है, कुंभ मेला होता है, लोग कितने दूर दूर से आते नहाने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों से आई है। त्रिभुवनो तारिणी तरलो तरंगे, त्रिभुवन को पवित्र करते हैं। क्यों? भगवान के चरण कमल से आई है। वामन देव की चरण कमल से आई है। आपने सुना होगा भगीरथ ने कैसे लाया। तो अगर चरणों से आती है इतना पवित्र होता है, तो मुंह से आएगा तो और कितना पवित्र होगा। मुख पद्म विनिश्रिता। तो उस भगवत गीता में भगवान प्रॉमिस करते हैं कि कोई भी व्यक्ति मेरे जन्म कर्म के बारे में जानते हैं तो उनको दोबारा जन्म नहीं होगा। तो इस प्रकार कुंती महारानी अपने प्रार्थना में कह रही है कि बहुत ही विरंबना है कि आप अजन्मा हैं, लेकिन आप अपनी योग माया शक्ति के द्वारा अलग अलग जोनि में जन्म लेते हैं और सभी जीवों को, हर जीवों को 84 लाख जीव जोनि में जितने भी जीव प्रजाति हैं सबको उद्धार करने के लिए। तो साधारण मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल है समझना कैसे भगवान अनबॉर्न है फिर भी भगवान जन्म लेते हैं। तो भगवान के बारे में इसलिए हमें श्रवण करना चाहिए, भगवान के बारे में हमें सुनना चाहिए। छिन्नन्ति गायन्ति गृह्णन्ति विष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तबे हितं जना तयेव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाह परमं पदं गुजम्। छिन्नन्ति गायन्ति, अगर कोई व्यक्ति भगवान के कथा सुनते हैं, गाते हैं, छिन्नन्ति गायन्ति गृह्णन्ति, उसको सीरियसली लेते हैं अपने जीवन में, जो सुनते हैं, स्मरन्ति, भगवान के स्मरण करते, नंदन्ति, उसमें आनंद लेते हैं, तबे हितम जना, आपके बारे में। तो उसमें उसका फल क्या होता है? अगर कोई भगवान के बारे में सुनते हैं, जैसे आप लोग सुनने के लिए आते हैं, इसका फल क्या है? कुंती महारानी कह रहे हैं तो वो पश्यन्ति अचिरे, अचिरे मतलब वेरी सून, तो वो पश्यन्ति अचिरे, चिरकाल, और उसके आगे और लगा देंगे तो क्या होता है? अचिरे, चिरकाल, मेनी इयर्स, और लगा देंगे तो
वेरी सून, उसका उल्टा हो जाता है। तो एव पश्यन्ति अचिरे, वेरी सून क्या होगा, पश्यन्ति, पश्यन्ति मतलब देखना, तो वेरी सून बहुत जल्दी उनको दर्शन होगा, किसका, तो एव पश्यन्ति अचिरे न तावकम भवो प्रवाहो परमम पदाम्बुजम, अर्थात परम पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान के पदाम्बुजम चरण कमलों का पश्यन्ति दर्शन होगा। और जिसका दर्शन होने से क्या होता है, भवो प्रवाहो, इस भौतिक जगत के जो भव दुख है उसका प्रवाह चल रहा है। कोरोना का प्रवाह चल रहा था, अभी भी चल रहा था, फिर से आ रहा है, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, प्रवाह इज गोइंग ऑन। और सब लोग सोचे कब ये खत्म होगा, भगवान से प्रार्थना करें आप तो मुक्ति दिला दो। तो ये भौतिक जगत इस प्रकार है, no matter how much technological advancement and scientific advancement, economical advancement has taken place, but you cannot stop this problem, or the birth and death. Can you stop the repetition of birth and death? Birth, old age, disease, death. Can you stop? No. क्योंकि भौतिक जगत के लॉ है, भौतिक जगत के नियम हैं काल के प्रभाव को। तो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है काल। मैं उस दिन बोल रहा था कि किस प्रकार हर व्यक्ति काल के अधीन है, हर व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता है वो सबसे ज्यादा काल के अधीन है। तो इस प्रकार कोई अगर भगवान के बारे में श्रवण करते हैं तो भवो प्रवाहो परमम पदाम्बुजम, इस भौतिक जगत के जो दुख है उसके इन्फ्लुएंस से मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान की कथा कितना लाभदायी है। तो आज हम लोग सुनेंगे कि भगवान श्री नरसिंह देव क्यों प्रकट हुए, और हम लोग सुनेंगे कि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र होने के बाद ऐसे महान भक्त कैसे बन गए। असुर के पुत्र तो असुर बनना चाहिए, तो असुर के पुत्र ऐसे महान भक्त कैसे बन गए, आप लोग सुनना चाहेंगे? तो और कल हम लोग सुनेंगे भगवान नरसिंह देव कैसे प्रकट हुए, और भगवान नरसिंह देव प्रकट होने के बाद प्रहलाद महाराज के जो बहुत ही दिव्य प्रार्थनाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं जो भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सुनना। तो कल हम लोग जो सुबह 11 बजे का क्लास होगा, 11:30 बजे का क्लास, उसमें हम लोग सुनेंगे। तो आज हम लोग सुनेंगे भगवान नरसिंह देव क्यों प्रकट हो गए। तो एक बार लक्ष्मी देवी भगवान विष्णु के पाद संवाहन कर रही थी। पाद संवाहन मतलब मसाजिंग द फीट। तो अभी भगवान की जो चरण कमल है बहुत ही कोमल है, बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब कमल के जैसा, या ऐसे बोला गया है कि मक्खन के जैसा भगवान के चरण कमल या भगवान के जो हाथ है, हस्त कमल जो है बहुत ही नरम है। तो जब लक्ष्मी देवी भगवान की पाद संवहन कर रही थी तो लक्ष्मी देवी सोच रही थी कि भगवान के चरण कमल इतना नरम है, भगवान के हस्त कमल इतना नरम है, ऐसे नरम और हाथ से इतने बड़े बड़े जो असुर है जिसका शरीर लोहे से भी ज्यादा कठोर है, उसको कैसे मारते हैं। लक्ष्मी देवी सोच रही थी कि भगवान के शरीर इतने क्या बोलते नाजुक हैं, इतना कोमल है, और इतने बड़े बड़े असुर, इतने बड़े बड़े ताकतशाली, इतने भयंकर अस्त्र लेके आक्रमण करते हैं, इतने क्या बोलते हिंस्र है, भगवान उनको कैसे मारते हैं। तो लक्ष्मी देवी सोच रही थी सेवा करते करते। तो भगवान ने कहा क्योंकि आपको इच्छा है जानने का, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा शरीर इतना कोमल होने के बाद
मैं ऐसे बड़े बड़े असुरों को मैं कैसे मारता हूँ। तो इस प्रकार लक्ष्मी देवी सोच रही थी और भगवान उनको उत्तर दिए। और उस तरफ दूसरे तरफ जो वैकुंठ के द्वारपाल थे जय विजय क्या सोच रहे थे? जय विजय सोच रहे थे कि हमारे प्रभु हमेशा सोए ही रहते हैं, हमारे प्रभु और हमारे माता लक्ष्मी माता हमेशा हमारे प्रभु की पाद सेवा करते। कब होगा कि हमारे प्रभु कुछ युद्ध करेंगे, कुछ असुर को वध करेंगे, तो तब तो हमारे प्रभु का महानता पता चलेगा ना। आपको वो स्टोरी पता है, भृगु मुनि आके भगवान को लात मारा था। और वो परीक्षा करना चाह रहे थे कि भगवान कौन है। तूने लात मारा था भगवान की छाती पे, अरे आप हमेशा सोए रहते हो, ऐसे भगवान की परीक्षा करने के लिए। और भगवान ने भृगु मुनि के चरणों में गिर गए थे, बोले देखिए मैं, आप तो ब्राह्मण हैं, आप हमारे जैसे। भृगु ऋषि लेकिन मैं आपको सम्मान नहीं दिया, हृदय पत्थर के जैसा है, इतना कठोर है, आपके चरणों में चोट आया होगा तो मैं थोड़ा सा मसाज कर देता। और भृगु मुनि भगवान की इस प्रकार विनम्रता देख के भृगु मुनि के हृदय परिवर्तन हो गया। हालांकि भृगु मुनि को पता था एक्चुअली वो भगवान है, लेकिन दूसरे को शिक्षा देने के लिए। तो जो मैं कहना चाहता था कि जय विजय सोच रहा था कि अगर भगवान को युद्ध करेंगे, जैसे कोई राजा है और उसको कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है, तो राजा का महानता पता चलता है, उनके कितनी शक्ति है, उनकी जश कितना पता नहीं चलता है। तो इस प्रकार जय विजय भी सोच रहा था कि अगर हमारे प्रभु एक बार ऐसे युद्ध करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो अभी भगवान के साथ कौन युद्ध कर सकता है? भगवान के साथ युद्ध करने के लिए भी भगवान के थोड़ा लेवल के होना पड़ेगा, है ना। एकदम कोई साधारण व्यक्ति, भौतिक जगत के लोग जो पापी है, वो भगवान के साथ क्या लड़ाई करेगा। तो जब जय विजय ने ऐसा सोचा तो उधर चतुष कुमार आ गया। चतुष कुमार ब्रह्मा के 4 पुत्र हैं और वो सारे ऊर्ध्व लोक भ्रमण करते हुए वैकुंठ के द्वार में चला गया था भगवान का दर्शन। और जब दर्शन करने के लिए एंट्री लेने के जय विजय ने रोक दिया, बोले आप लोग नहीं जा सकते। तो जब उन्होंने रोक दिया तो तब क्या हुआ, ये जय विजय जो चतुष कुमार है बहुत क्रोधित हो गए। बोले अरे आप कैसे हो, अब वैकुंठ के निवासी हो और आप भेदभाव करते हो, कौन क्वालिफाइड है कौन क्वालिफाइड नहीं है। वैकुंठ लोग तो सबके प्रति दयालु होना चाहिए, और सबके प्रति समदर्शी होना चाहिए। आप भेदभाव करते हो तो आप तो वैकुंठ में रहने के लायक नहीं हो, आपको शाप देता हूं, आप असुर होके जन्म लो। तो तब क्या हुआ, ये जो चतुष कुमार ने अभिशाप दिया, और चतुष कुमार ने अभिशाप दिया ये जय विजय को कि आप असुर होके जन्म लो। तो चतुष कुमार, ये जो जय विजय बहुत दुखी हो गया। और सोचने लगा अभी हमारा क्या होगा, हम लोग हमारे प्रभु के सेवा से दूर चले जाएंगे। तो तब क्या हुआ, भगवान तुरंत उधर आ गए। और तुरंत उधर आके उन्होंने चतुष कुमार की स्तुति की, ब्राह्मणों की स्तुति की। और तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा इनको ग्रेस दे दो, थोड़ा सा इसको माफ कर दो। तो भगवान ने चतुष कुमार का इतना ग्लोरिफिकेशन किया, तो चतुष कुमार बहुत पैसिफाई हो गए।
चतुष कुमार की जितनी क्रोध है वो प्रशमित हो गया। और भगवान ने इतना ग्लोरिफिकेशन किया, इतना चतुष कुमार को, इतना ब्राह्मणों को इतना ऊपर कर दिया, चतुष कुमार बहुत हम्बल हो गया। बोले अरे भगवान इतना ग्लोरी, हम लोग तो भगवान की पूजा करना चाहिए। भगवान ऐसे बोलने लगे, मैं डिटेल्स नहीं बोल रहा हूँ कि टाइम कम है। तो चतुष कुमार बहुत ही विनयी हो गए, और जब विनयी हो गए तब उनको समझ में आया एक्चुअली हम लोगों ने गलती किया है, हम लोगों ने भगवान के सेवक को श्राप नहीं देना चाहिए था। तो वो लोग तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, असल में हम लोग ही अनक्वालिफाइड है नहीं घुसने का, और हमने जय विजय जैसे महान भक्तों को श्राप दे दिया। और तो लेकिन अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है, जो श्राप देंगे तो होगा ही। तो तब भगवान ने कहा देखिए आप कुछ करिए कि लोग जल्दी मेरे पास आ जाए। तो तब चतुष कुमार ने जय विजय को बोला ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप भक्त के रूप में रहो, 7 जीवन लगेगा आपको, 7 जीवन आप अगर भक्त के रूप में रहोगे तो 7 जीवन लगेगा, 7 जीवन के बाद आप वापस आ जाओगे। और नहीं तो अगर आप असुर के रूप में जाओगे तो क्या होगा, आप 3 जीवन में ही वापस आ जाओगे। तो जय विजय भगवान के पास जल्दी वापस आना चाहता था, क्योंकि भगवान से ज्यादा समय दूर नहीं रहना चाहता था। तो ठीक है, हम लोग 3 जीवन असुर के रूप में रहेंगे। तो तब भगवान ने कहा, हरे कृष्ण, तो तब भगवान ने कहा कि असल में ये मेरा ही इच्छा था, असल में मेरा ही इच्छा था कि लक्ष्मी देवी की इच्छा थी कि लक्ष्मी देवी की इच्छा थी कि मेरा शरीर इतना कोमल है और मैं इतने बड़े बड़े असुरों को मैं कैसे मारता हूं, तो वो देखना चाहती थी। तो मैंने उनको वचन दिया था कि मैं आपको दिखाऊंगा। और आप लोगों की इच्छा थी कि मैं केवल सोया रहता हूं। अगर मैं किसी असुर को बात करूं तो बहुत अच्छा होगा। तो अभी तो कोई असुर तो नहीं हो सकता, बाहर कोई छोटा मोटा असुर तो मेरे साथ लड़ाई नहीं कर सकता, मेरे भक्त ही मेरे साथ लड़ाई कर सकता है। तभी वैकुंठ में भगवान के साथ कौन लड़ाई करेगा? वैकुंठ में सभी लोग भगवान के भक्त हैं। तो इसलिए ये चतुष कुमार, जय विजय को चतुष कुमार का शाप लग गया। ये भगवान की इच्छा से चतुष कुमार ने जय विजय को शाप दिया कि असुर के रूप में वो जन्म ले, क्योंकि भगवान के साथ लड़ाई तो साधारण कोई असुर भी नहीं कर सकता, केवल भक्त ही कर सकता है। और भगवान को ये जो जय विजय है, इनको भगवान को आनंद देने की इच्छा था, क्योंकि वैकुंठ में तो कोई भगवान के साथ युद्ध नहीं करते हैं। तो भगवान तो रसराज है, भगवान हर रस को आस्वादन करते हैं। भगवान पति के रूप में लक्ष्मी देवी के साथ आनंद विलास करती है, और भगवान नंद यशोदा के साथ उनके पुत्र या वात्सल्य रस का आस्वादन करते हैं, उनके सखाओं के साथ साख्य रस का आस्वादन करते हैं। लेकिन वीर रस का जो आस्वादन है, जो मॉक फाइट होता है, युद्ध होता है, उसका आस्वादन भगवान नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए जय विजय की इच्छा था कि भगवान को थोड़ा सा उस रस का आनंद प्रदान करे, और इसलिए वो सोच रहे थे कि भगवान को अगर थोड़ा लड़ाई करते तो भगवान को बहुत आनंद होता। तो उनकी इच्छा था भगवान को इस प्रकार आनंद देने का, और इसलिए ये चतुष कुमार आ गए और उनको शाप दिए। तो इस प्रकार ये चतुष कुमार
चतुष कुमार के अभिशाप से ये जो जय विजय थे स्वर्ग के द्वारपाल है, अगले तीन युग में वो असुर के रूप में जन्म हुए। तो सत्य युग में वो लोग आए हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष के रूप में, और त्रेता युग में आए शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में, शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में, सॉरी, त्रेता युग में आए रावण और कुंभकर्ण के रूप में, रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और दापर युग में आए शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में। तो ये जो हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष हैं, और रावण कुंभकर्ण है, और शिशुपाल और दंत वक्र है, जो असुर थे, भगवत विद्वेषी थे, ये असल में वैकुंठ के द्वारपाल है। तो वैकुंठ के द्वारपाल है तो वो भगवान के वीर रस का आस्वादन कराना चाहते थे। तो भगवान का वीर रस का आस्वादन कराना चाहते थे, और भगवान भी लक्ष्मी देवी के साथ लक्ष्मी देवी की इच्छा को पूरी करना चाहते थे। तो इसलिए लक्ष्मी देवी की इच्छा को पूरी करने के लिए, लक्ष्मी देवी की इच्छा को पूरी करने के लिए और जय विजय की इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान ये जो नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए। तो जब भगवान ये जो हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष का जन्म हुआ, कश्यप मुनि के दो पत्नियां थी, एक है दीति और दूसरा है अदिति। तो दीति के पुत्र लोग कौन थे? दैत्य या दानव, और अदिति के पुत्र देवता आदित्य। तो अभी दीति के पुत्र के रूप में हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष का जन्म हुआ, और हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु का जब जन्म हुआ तो पूरे पृथ्वी में सब अपशकुन लक्षण दिखाई देने लगे। तो हिरण्यक्ष का जन्म हुआ पहले, तो हिरण्यक्ष पूरे पृथ्वी में तहलका मचा दिया, सारे देवता ऋषि मुनि लोगों को अत्याचार करने लगे, और फिर इस पृथ्वी को अपने कक्ष से नीचे गिरा दिया, रसातल में गिरा दिया। तो तब भगवान वराहदेव के रूप में आए और पृथ्वी को रसातल से अपने कक्ष में स्थापन किया। तो इस ब्रह्मांड में 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, और मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम इस मर्तलोक में बहुत सारे, उसमें से एक पृथ्वी को छोड़ के और भी प्लैनेट्स हैं, साइंस के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस पृथ्वी को अपने कक्ष से नीचे रसातल में फेंक दिया। तो नीचे बहुत सारे लोग हैं, 7 प्लैनेटरी सिस्टम है, उसमें से एक प्लैनेट है रसातल, अतल, वितल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। तो रसातल में फेंक दिया। तो तब भगवान ने बरहादेव के रूप में आए, और जैसे शुकर होता है, शुकर पानी से कुछ चीज उठाते हैं, तो भगवान ही शुकर के रूप में आए हैं। केशवधीत शुकर रूप जय जगदीश हरे। तो ये कवि जयदेव का फेमस 10 अवतार स्तोत्रम है। तो भगवान ने जब उठाया, फिर बरहादेव के साथ बहुत लड़ाई हुआ हिरण्यक्ष का, और भगवान हिरण्यक्ष ने भगवान बरहादेव ने हिरण्यक्ष को मार दिया। और जब मार दिया तो अब हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो गया। हालांकि हिरण्यकशिपु को बहुत सारे शास्त्रिक नॉलेज पता था, बहुत सारे ज्ञान था, लेकिन फिर भी उनका जो शास्त्रिक नॉलेज है वो कोई काम नहीं आया, क्योंकि उनके हृदय में भगवान के प्रति बहुत ईर्ष्या था। और इसके कारण उसने क्या निर्णय लिया कि भगवान विष्णु को मैं मार दूंगा, और इसलिए उन्होंने संकल्प लिया कि मैं बहुत कठोर तपस्या करूंगा, और उस तपस्या के बल पे मैं अमर हो जाऊंगा और कोई हमें मार नहीं पाएगा, और मैं भगवान विष्णु को मार दूंगा। उसको पता है भगवान विष्णु है,
और उसको कोई मार नहीं सकता। लेकिन वो क्या सोच रहे हैं, मैं मार दूंगा भगवान को। तो जब कोई व्यक्ति आसुरिक भाव संपन्न हो जाता है तो तब क्या होता है, उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। जैसे रावण इतना कामुक हो गया कि उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया। गीता में भगवान कहते हैं एक श्लोक है, तो भगवान कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति इंद्रियों भोग के प्रति बहुत आसक्त होते हैं तब उनके बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, उनके बुद्धि उनके बुद्धि सेकेंड चैप्टर में है, उनके बुद्धि खत्म हो जाता है। तो ये क्या बोलते हैं, भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम तया अपहरित चेतसाम, भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम, थैंक यू, तया अपहरित चेतसाम। भोगो ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जब भोग ऐश्वर्य के प्रति बहुत बहुत ज्यादा आसक्त हो जाता है, अपहरित चेतसाम, उनके तो उसकी बुद्धि अपहरित लॉस्ट हो जाता है। तो इस प्रकार हिरण्यकशिपु इतने बुद्धिमान और इतने शास्त्र के ज्ञान होने के बाद भी वो सारे बुद्धि खत्म हो गया। तो तब क्या हुआ, तो वो तपस्या अंदर जगह में कठोर तपस्या लगा, तो इतना तपस्या करने लगा, एक पैर में खड़े होके पानी के अंदर, ठंडी के समय पानी के अंदर एक पैर में खड़े होके, केवल एक पैर के नहीं, एक पैर के एक उंगली के ऊपर खड़े होके और अपने दो हाथ से ऐसे ब्रह्मा जी का तपस्या करने लगते हैं। जितने भी असुर होते हैं दो जन का तपस्या करते हैं, कौन कौन, शिव जी का, ब्रह्मा जी का। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि असल में जो शिव और ब्रह्मा जी का जो तथाकथित भक्त हैं वो असल में उनके भक्त नहीं है, उनके हृदय में बहुत आसुरिक भाव रहता है। जैसे एक असुर था वृकासुर, शिव जी का भजन कर रहा था, और कैसा भजन कर रहा था, नहीं अपने सर को काट के अग्नि में आहुति दे रहा था। ऐसा कोई कर पाएगा? तो शिव जी, अरे बेटा ऐसा मत करो, तो तुरंत आ गया, बोले क्या चाहिए बोलो। तो शिव जी आए पार्वती के साथ, और वो जो इतना असुर था और शिव जी के साथ पार्वती को देख के पार्वती के प्रति आकर्षित हो गए, बोले हमें पार्वती चाहिए। तो देखिए कैसा भक्त है। तो इस प्रकार जो देवी देवता के जो भक्त होते हैं, तथाकथित भक्त होते हैं, तो वो लोग ज्यादातर आसुरिक भावापन्न होते हैं। वो कोई भगवत विद्वेषी होते हैं बहुत बार। जो ओरिजिनली देवी देवता के पास एक्चुअली जेन्युइन एटीट्यूड के साथ जाते हैं, उनको भगवान के प्रति श्रद्धा रहता है, भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा रहते हैं, और बहुत बार देवी देवता लोग उनको भगवान के पास भेजते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पास टाइम्स हैं। तो इस प्रकार ऐसे घनघोर तपस्या करने लगे कि उनके तपस्या के बल पे सारे देवता लोग भयभीत हो गए। तो इतने साल से तपस्या करने लगे कि उनके शरीर पूरे कीड़ा से खा गए, उनके पूरे शरीर कीड़ा खा गए, केवल कंकाल था उनके शरीर में। लेकिन हिरण्यकशिपु उस कंकाल में जो हड्डी है, हड्डी के अंदर क्या रहता है, उसको क्या बोलते हैं, मज्जा। उस मज्जा के अंदर वो अपने प्राण को धारण किए हुए और तपस्या कर रहे थे। देखिए ऐसा तपस्या कर रहे थे, अब तो लोग नहीं कर सकता। अगर आप लोगों को बोला जाता है नहीं, जैसे कल नरसिंह चतुर्दशी है तो शाम तक फास्टिंग है, तो फास्टिंग सुन के हम ठीक है प्रभु, हम परसों आएंगे। तो हम लोग जो भी तरह तपस्या सुनते हैं तो हम लोग का क्या होता है, हम लोग बैकफुट में चले जाते हैं। तो हालांकि
तपस्या जो होता है थोड़ा भक्ति के अनुकूल होता है, लेकिन अनुकूल भाव से भी तपस्या करना चाहिए। तो हिरण्यकशिपु इतना तपस्या किया कि उनके शरीर से अग्नि उत्पन्न हो गए और वो अग्नि ऊर्ध्व लोक में जाने लगा। तो इसमें आचार्य लोग कहते हैं कि केवल तपस्या करने से भगवान को प्राप्त नहीं हो जाता है। आराधितो यदि हरिम तपसा ततो की, आराधितो यदि हरिम तपसा ततो की। अगर हमने भगवान की आराधना नहीं किया तो तपस्या का क्या बेनिफिट है? तो ये हम लोग त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन अगर भगवान की आराधना नहीं किया तो तपस्या का क्या वैल्यू है? इसलिए हमें तपस्या करना चाहिए भगवान को संतुष्ट करने के लिए, भगवान की प्रीति विधान करने के लिए। देन दैट तपस्या हैव मीनिंग, तपस्या का कुछ वैल्यू है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोला कि इस्कॉन के भक्तों के लिए या कलियुग के लोगों के लिए तपस्या क्या है? सुबह उठो, नहाओ और भगवान के नाम का जप करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के नाम का जप करो। हाँ, तपस्या क्या है कलियुग में? भक्तों के साथ रहो, असत्संग को त्याग करो, ये तपस्या है। तपस्या क्या है? ने अनाप शनाप मत खाओ, मत पियो, भगवान की प्रसाद खाओ। हरि बोल। तो इतनी सुंदर तपस्या है। तो कलियुग में आप लोग उतने भयंकर तपस्या नहीं कर सकते, ना की जरूरत है। तो हिरण्यकशिपु इतने तपस्या किए, लेकिन हृदय में कैसी भाव है? आसुरिक भाव है, ईर्ष्या भाव है। तो ऐसे तपस्या करने लगे कि पूरे ऊर्ध्व लोक में, हाँ, उसके तपस्या या उसके जो तेज है वो फैल गया और सारे देवता लोग भयभीत हो गए। जब असुर लोग तपस्या करते तो देवता का भय हो जाता। तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं, स्वर्ग लोक में जाएंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे, लेकिन देवता का भी टेंशन है हमेशा। जैसे भारत के लोग सोचते नहीं, पढ़ाई लिखाई करेंगे और जीआरई देंगे और अमेरिका चले जाएंगे और उधर जाके बहुत एंजॉय करेंगे, हायर प्लैनेट्स में जाएंगे। और अमेरिका के लोग सोचते नहीं कि मून प्लैनेट में जाएंगे तो उधर एंजॉय करेंगे। और मून प्लैनेट में जो लोग रह रहे हैं डेमिगॉड्स, उनका क्या हालत है? अरे बाप रे, डेमिगॉड असुर लोग तपस्या कर रहे हैं, वो लोग अटैक करेंगे तो पूरे हमें सारा राज्य चला जाएगा। तो इस प्रकार गीता में भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवन लोक पुनरावर्तने अर्जुन, फ्रॉम द टॉप प्लैनेटरी सिस्टम टू डाउन लोएस्ट प्लैनेटरी सिस्टम, एवरीवेयर देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, पीपल आर फुल ऑफ एंजाइटी। तो इसलिए जब तक हम लोग भगवान के धाम नहीं चले जाते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तब तक इस दुखमय परिस्थिति से हमारा उद्धार नहीं है। इसलिए भगवान का धाम का क्या नाम है? वैकुंठ। वैकुंठ का मतलब क्या? इधर कोई कुंठा नहीं है, विगतो कुंठा इति वैकुंठ, इधर कोई कुंठा नहीं है, कोई दुख नहीं है। तो ऐसे तपस्या करने लगे। तभी हिरण्यकशिपु का तपस्या कौन तोड़ेगा? इतना तपस्या कर रहे हैं तो कोई भी, किसी का हिम्मत नहीं है उसको सामने जाना। तो तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए। जस्ट 5 मिनट्स। प्रसाद रेडी है क्या? प्रसाद इधर लेके आ जाओ। तो तब क्या हुआ? तो ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी सारे देवता के साथ मीटिंग किया। तो बोला कौन उनके तपस्या को भंग कर सकता है, उनके तपस्या को कौन भंग कर सकता है। सब देवता को टेंशन हो गया कि अभी हिरण्यकशिपु अगर उसको वर प्राप्त कर गया तो क्या होगा? हम लोगों का हरिबोल हो जाएगा, सब घर वर छोड़ के भागना पड़ेगा। तो तब पूछा कि ये कौन इसका तपस्या को भंग कर सकता है? तो कोई देवता राजी नहीं है भंग करने के लिए। तो तब नारद मुनि ने कहा ठीक है, मैं भंग करूंगा। तो नारद मुनि ने क्या किया? नारद मुनि एक पक्षी के रूप धारण किया। ये सब लोग सुन रहे हैं पीछे क्या चल रहा है। तो नारद मुनि एक पक्षी के रूप धारण किया और पक्षी के रूप धारण करके हिमालय पर्वत में
हिमालय में चले गए जिधर हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था। और जब तपस्या करता है और उसी उसी उस जिधर तपस्या करता है एक वृक्ष के नीचे, उस वृक्ष के अंदर बैठ गए और बैठ के नारद मुनि विष्णु 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 नारायण 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 ऐसे बहुत मधुर ध्वनि से बोलने लगे। और फिर कुछ समय के बाद ये जो हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहे थे, इधर पूरा एकदम शांत वातावरण था और कहाँ से विष्णु की ध्वनि आ रहा है। और जब हिरण्यकशिपु को इस विष्णु की ध्वनि सुनाई दिया तो उसका अटेंशन उधर चला गया, पूरा अटेंशन उधर चला गया, कौन इधर विष्णु का नाम जप कर रहा है। और जब भी विष्णु का नाम उन्होंने सुना तभी क्या हुआ, उनके हृदय में क्रोध हो गया, तुरंत उनके हृदय में क्रोध हो गया। और फिर नारद मुनि कंटिन्यू करने लगे भगवान के नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण का नाम, भगवान का नाम बोलने लगे। और जब बोलने लगे तो तब क्या हुआ, ये हिरण्यकशिपु का बहुत क्रोध, कौन है इधर, कृष्ण का नाम बोल रहा है, कितना हिम्मत, अभी तुमको मौत के घाट उतार दूंगा मैं। बहुत क्रोधित हो गया। और क्या हो गया, हिरण्यकशिपु का जो मेडिटेशन भंग हो गया। तो जब भंग हो गया तो अभी ये हिरण्यकशिपु डिस्टर्ब हो गया, बोले अभी ये ध्यान नहीं होगा और मेरे से। हिरण्यकशिपु का कुछ शास्त्र का ज्ञान था, तो सोचा था कि क्रोध उत्पन्न होता है काम से, पर काम का भाई है क्रोध। तो उनको गीता में भगवान बोलते हैं, क्या श्लोक है वो, कामात् क्रोधो विजायते। तो विषय के ध्यान करने से, मतलब भोग के विषय को ध्यान करने से काम उत्पन्न होता है, और काम से क्या उत्पन्न होता है, काम अगर डिससेटिस्फाई होता है, अनफुलफिल होता है, तो क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। तो हिरण्यकशिपु सोचा ठीक है, काम से क्रोध उत्पन्न, ठीक है, काम सेटिस्फाई कर देता हूं जाके, तो क्रोध चला जाएगा और फिर से आके मैं ध्यान करूं। तो गया घर में, वापस आया अपने राज्य में वापस आया, लेकिन उनके मन में काम सेटिस्फाई करने के लिए आया, लेकिन उनके मन में वो विष्णु का जो ध्वनि है वो चल रहा था, तो चल रहा था। और इस प्रकार वो आए और अपने राज्य में आए और अपनी पत्नी जो है कयादु का संग किया, कयादु से मिलित हुआ। और जब उनके साथ मिलित हुआ तो उनके मन में वही विष्णु का शब्द जो है, विष्णु का नाम वो चल रहा था, गूंज रहा था। और इस प्रकार जब हिरण्यकशिपु कयादु का संग किया, भगवान के जो शब्द ध्वनि, भगवान के नाम को याद करते हुए अनकॉन्शियसली, या क्या बोलते, अनिच्छा पूर्वक याद कर रहे थे। और वो भी भगवान के जो शुद्ध भक्त नारद मुनि। नारद शब्द का अर्थ क्या है, नार शब्द का अर्थ है नारायण, और दा मतलब जो दे सकता है, जो नारायण को दे सकता है, उनको कहते हैं नारदा। तो इस प्रकार, क्योंकि नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त है और उनके श्री मुखारविंद से हिरण्यकशिपु जैसे असुर भगवान के नाम सुना, इसलिए भूल नहीं पा रहा है। और जब उनके साथ वो मिलित हुए, उनके पत्नी के साथ मिलित हुए, उसके फल स्वरूप
वयादु का जो पुत्र प्राप्त हुआ वो भगवान के महान भक्त हैं। हरि बोल। तो प्रहलाद महाराज भगवान के महान भक्त क्यों बने? क्योंकि उसका एक कारण ये है। और नारद मुनि ऐसे एक महान भक्त हैं, नारद मुनि को ये पूरा स्टोरी पता है पहले से ही। नारद मुनि तो त्रिकालज्ञ है, नारद मुनि को पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर पता है। नारद मुनि को पता है कि हिरण्यकशिपु एक बड़ा असुर के जन्म लेने वाले, अगर भगवान उनको, और ये जो स्वर्ग वैकुंठ में जो लीला हुआ था वो नारद मुनि को ऑलरेडी पता है। नारद मुनि क्या करते, सारे न्यूज चैनल में न्यूज भेज देते हैं, जब भी ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। तो नारद मुनि को पता है, और इसलिए नारद मुनि क्या करते हैं, नारद मुनि भगवान के लीला में सहायता करते हैं। तो अभी हिरण्यकशिपु का मृत्यु कैसे होगा, इतना बड़ा असुर हिरण्यकशिपु का मृत्यु कैसे होगा? इसलिए नारद मुनि केवल हिरण्यकशिपु का जो ध्यान है उसको भंग नहीं किया, उन्होंने प्रहलाद महाराज का आविर्भाव का बीज बो दिया। समझ रहे हैं? प्रहलाद महाराज के आविर्भाव, भगवान के एक शुद्ध भक्त, क्योंकि हिरण्यकशिपु के लिए तो भगवान प्रकट नहीं होंगे, प्रकट किन के लिए होंगे? और हिरण्यकशिपु को भगवान को छोड़ के कोई मार नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दे देंगे, वो नारद मुनि को पता है। ब्रह्मा जी ऐसे वरदान दे देंगे कि हिरण्यकशिपु को कोई मार ही नहीं पाएगा, कोई डेमिगॉड्स मार नहीं पाएगा। अभी दूसरे ओर प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु के लिए तो भगवान प्रकट नहीं होने वाले हैं, तो फिर क्या होगा? अगर प्रहलाद नहीं प्रकट होंगे तो देवता को पिटाई खाते ही रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि हिरण्यकशिपु को मारने के लिए तो भगवान प्रकट नहीं होने वाले हैं। दूसरे ओर हिरण्यकशिपु को भगवान के बिना कोई मार भी नहीं सकता, इसलिए ओनली ऑप्शन था प्रहलाद। और इसलिए हिरण्यकशिपु, देखिए नारद मुनि कितने महान भक्त हैं, नारद मुनि कैसे रोल प्ले करते हैं। नारद मुनि हिरण्यकशिपु का ध्यान भी भंग कर दिया, और उसके द्वारा उन्होंने हिरण्यकशिपु के हृदय में प्रहलाद महाराज के आविर्भाव के बीज, क्या बोलते हैं, इम्प्लांट कर दिया, और उसके कारण प्रहलाद प्रकट हो गए। और प्रहलाद महाराज को जब हिरण्यकशिपु ने टॉर्चर किया, तब भगवान को और रहा नहीं गया। भगवान को टॉर्चर करेंगे तो भगवान माफ कर देते हैं, भगवान के चरणों में कोई अपराध कर देता है भगवान उसको माफ कर देते, लेकिन भगवान के भक्तों के चरणों में अगर कोई अपराध करते हैं तो भगवान उसको टॉलरेट नहीं करते। तो इस प्रकार भगवान को आविर्भाव कराने में नारद मुनि क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। नारद मुनि भगवान को आविर्भाव कराने के लिए एक, क्या बोलते हैं उसको, कैटलिस्ट का काम करते हैं। भगवान को आविर्भाव कराने के लिए नारद मुनि विशेष रोल प्ले करते हैं। तो अब जस्ट मैं लास्ट 2 मिनट में बोलूंगा। तो ये एक कारण है प्रहलाद महाराज कैसे भगवान के भक्त बने। दूसरा कारण है कि प्रहलाद महाराज उनके पिछले जीवन में एक साधारण से व्यक्ति थे, कॉलेज में पढ़ने वाले ऐसे लड़के थे, जो एक लड़की से अफेयर था। तो दोनों का अफेयर था, और अफेयर में क्या होता है, बहुत बार आपस में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है। तो तुम दोनों में झगड़ा हो गया, और बहुत दुखी थे वो लड़का, और बहुत छोड़ के चले गए, घर छोड़ के चले गया जंगल में। तो जंगल में चला गया, तो जंगल में घूमता रहा, और बहुत पूरा दिन घूमता रहा, और बहुत दुखी थे और नाराज थे, और पूरे दिन किधर कोई खाना पीना नहीं मिला, और शाम हो गया, अभी बोले मैं घर नहीं जाऊंगा, नहीं देखूंगा उसका। तो शाम हो गया, तो सोचने लगे कि कहाँ रुकूंगा मैं, कहाँ सोऊंगा। तो जब सोने के लिए जगह ढूंढने लगे, तो एक देखा, एक बहुत पुराना एक घर, टूटा हुआ घर उन्होंने दिखाई दिया। तो ये एक पुराण में, नरसिंह पुराण में वर्णन किया गया है ये 5 टाइम। तो
तो तब वो उस मंदिर में, वो एक्चुअली टूटा हुआ घर नहीं था, एक मंदिर था, तो उधर वो मंदिर को साफ करके उधर वो रात को सो गया। तो क्योंकि वो पूरे दिन बहुत भूखे थे, नहीं खाए थे, दुखी थे, और बहुत कष्ट हुआ, पीड़ा हुआ, तो दैव के प्रभाव से उनका उधर अगले दिन उनका मृत्यु हो गया। तो जब मृत्यु हो गया तो अगले जीवन में वो जो व्यक्ति था जिसने अपने प्रेमिका से नाराज होकर चले गए, वो अगले जीवन में प्रहलाद का जन्म लिया। क्यों जन्म लिया? हरि बोलता हमने बोल दिया। क्यों जन्म लिया? क्योंकि वो जो दिन था वो नरसिंह चतुर्दशी था और उसने अननोइंगली फास्टिंग किया था। हरि बोल। और वो जो मंदिर है वो आदि नरसिंह देव का मंदिर था। हरि बोल। तो उन्होंने अननोइंगली नरसिंह चतुर्दशी के दिन फास्टिंग किया था और नरसिंह देव के मंदिर में रात्रि निवास किया था और अननोइंगली उन्होंने नरसिंह देव के प्रति कुछ भक्ति परफॉर्म किया था और उसके फल स्वरूप उनको अगले जीवन में भगवान नरसिंह देव के महान भक्त के रूप में जन्म। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग नरसिंह चतुर्दशी अच्छे से, नरसिंह चतुर्दशी अगर मनाएंगे, अभी वो तो प्रेमिक तो अननोइंगली परफॉर्म किया था, लेकिन अगर आप नोइंगली परफॉर्म करेंगे तो फिर क्या फल प्राप्त। तो इस प्रकार कल नरसिंह चतुर्दशी है। ऐसे शास्त्र में लिखा गया कि कोई अगर एक नरसिंह चतुर्दशी पालन करते हैं या जन्माष्टमी पालन करते हैं, 1000 एकादशी का फल प्राप्त हो सकता है। 1000 एकादशी। तो इस प्रकार नरसिंह देव जो है भक्त वत्सल है, नरसिंह देव भक्त रक्षक है, नरसिंह देव विनाशकारी है। जितने भी बाधाएं हैं हमारे जीवन के या आध्यात्मिक जीवन के, सारे बाधा को विनाश करते हैं। तो हमारे जितने भी जीवन में बाधा है, हमें भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करना चाहिए। नरसिंह देव अपने नाखून से सारे बाधा को चल देते हैं। तो इस प्रकार कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। सब कल ज्यादा से ज्यादा भगवान के दर्शन करना चाहिए, कथा को सुनना चाहिए और हमें चाहिए भगवान की सेवा करने की, अगर हमें अपॉर्चुनिटीज हैं वो सेवा करना चाहिए। भगवान के जो दिव्य आरती अटेंड करना चाहिए और इस प्रकार हमें संध्या तक, नरसिंह देव का आविर्भाव हुआ था शाम को संध्या के समय, क्योंकि दिन में नहीं मरेंगे, रात में भी, तो संध्या के समय भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए। जो लोग फास्टिंग करते हैं जरूर शाम संध्या तक फास्टिंग करिए। शाम को अभिषेक होगा। कल शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे रोड में इस्कॉन हमारा लॉन है, तो जिधर भगवान नरसिंह देव का अभिषेक होगा, कीर्तन होगा, कथा होगा, कल्चरल प्रोग्राम होगी और सबके लिए शाम को प्रसाद रहेगा। तो फास्टिंग का बहुत सारा लेवल होता है। जो फुल फास्टिंग कर सकते हैं विदाउट वाटर शाम को, तो शाम तक विदाउट वाटर फास्टिंग कर सकते हैं, तो आपको भगवान नरसिंह देव का बहुत आशीर्वाद मिलेगा। हम लोग बहुत बार इधर उधर फास्टिंग करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु के लिए जब फास्टिंग करते हैं, तपस्या करते हैं, उनके संतुष्टि के लिए तो हमें बहुत आध्यात्मिक लाभ होता है, भगवान की कृपा प्राप्त होता है, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होता है। अगर आपके भक्ति जीवन में आप बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, अप्स एंड डाउन फेस कर रहे हैं, विशेष करके जो डिवोटीज प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे वीकनेसेस होता है, हमारे वीकनेसेस होता है, बैड हैबिट्स होता है, जिसको डिफीट करना मुश्किल होता है। तो नरसिंह चतुर्दशी बहुत ही विशेष है। नरसिंह देव भक्तों को रक्षा करते हैं। मेरे को पर्सनली याद है, मैं कल बताऊंगा किस प्रकार नरसिंह देव
हमें मृत्यु से बचाया था। तो ऐसे बहुत सारे पास टाइम है नरसिंहदेव भगवान का, कैसे उन भक्तों को रक्षा करते हैं। बहुत सारे बुक्स हैं नरसिंहदेव के पास टाइम के ऊपर। तो आप सभी लोग कल नरसिंह चतुर्दशी अच्छे से मनाइए। तो आज हम लोग श्रवण किए किस प्रकार भगवान भगवान क्यों प्रकट हुए हैं नरसिंहदेव के रूप में, और हम लोग आज सुने किस प्रकार प्रहलाद महाराज भगवान के महान भक्त बने। तो कल हम लोग श्रवण करेंगे 11:30 बजे से, हम लोग 11:30 बजे श्रवण करेंगे कैसे भगवान प्रकट हुए। तो नरसिंहदेव कैसे प्रकट हुए और कैसे हिरण्यकशिपु को वर प्राप्त हुआ, वर प्राप्त करने के बाद हिरण्यकशिपु किस प्रकार बहुत प्रकार के डिस्टर्बेंस मचा के रखा, और प्रहलाद महाराज की शिक्षा क्या है। प्रहलाद महाराज किस प्रकार इतने कठिन परिस्थिति में भी अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को नहीं छोड़ा। तो प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव भगवान का ग्लोरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा अगर हम लोग प्रहलाद महाराज के ग्लोरिफिकेशन, प्रहलाद महाराज की शिक्षा, प्रहलाद महाराज के प्रेयर्स अगर हम लोग नहीं सुनेंगे। तो कल हम लोग प्रहलाद महाराज की प्रार्थना, प्रहलाद महाराज की शिक्षा और किस प्रकार नरसिंहदेव प्रकट हुए उसके बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। तो जो भक्त लोग कल आ सकते हैं, ऑनलाइन डिवोटीज, ऑफलाइन डिवोटीज, आप कल 11:30 बजे मंदिर में आइएगा। तो मंदिर में 11:30 बजे से लेके 1 बजे तक हम लोग भवन कथा सुनेंगे। उसके बाद आपके लिए थोड़ा फ्री टाइम रहेगा। 3:45 से कुछ स्पेशल प्रोसेशन होगा, भगवान को लेके जाया जाएगा मंदिर से लेके गुरुसदय रोड में, और हमारे डिवोटीज को कुछ सेवा मिल चुका है। और इवनिंग में जो प्रसादम सर्विस होगा, तो प्रसादम सर्विस में भी रिफिलिंग का सेवा है। तो आप लोग भगवान की डायरेक्ट सेवा करने के सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो उसको उसमें भाग ले सकते हैं। और इवनिंग का प्रोग्राम जो होगा 4 बजे से होगा, तो 4 से 7:30 बजे कीर्तन होगा, उसके बाद कथा होगा, फिर 5:45 से अभिषेक होगा, और फिर कुछ कल्चरल प्रोग्राम, और एंड में आरती और महाप्रसाद रहेगा। और फिर शाम को जो वॉइस डिवोटीज आप लोग वापस रिटर्न आ जाइएगा इधर, ठीक है। वो लोग ऑनलाइन डिवोटीज घर में हैं, आप लोग 11 बजे आ सकते हैं, और कल का क्लास होगा सीडी हॉल में, जो है उधर क्लासेस होगा। अगर आप लोग 7 बजे नहीं आ सकते तो इवनिंग को जरूर 4 बजे गुरुसदय रोड में आ जाइएगा। तो गेट में सबके लिए कूपन दिया जाएगा, का जो प्रसाद कूपन है गेट में दिया जाएगा। तो आप सभी लोग गेट से कूपन कर लीजिएगा। अगर कोई असुविधा है, आप लोग लेट पहुंच रहे हैं, तो इन्फॉर्म कर सकते हैं, हम लोग ट्राई करेंगे कुछ कूपन रखने का। हालांकि कूपन मिल जाएंगे। ओके, तो कल संडे है, तो आप लोग हॉलीडे को, तो हॉलीडे हो जाता है जब आप भगवान के आश्रय लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नरसिंहदेव भगवान की, प्रहलाद महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, परमानंदे। तो सभी लोग प्रसाद दीजिए। तो आज हमारे इधर बहुत सारे डिवोटीज आए हैं, हम सभी को स्वागत करते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग कल ऑफलाइन में आ जाइए, ठीक है। नरसिंह चतुर्दशी भगवान के मंदिर में हमारे नरसिंहदेव का बहुत सुंदर विग्रह है, तो भगवान की कृपा प्राप्त करिए। तो मैं जो बोला था, फास्टिंग, फर्स्ट लेवल ऑफ फास्टिंग विदाउट वाटर, सेकंड लेवल ऑफ फास्टिंग विथ वाटर, थर्ड लेवल ऑफ फास्टिंग with fruits, okay, third level of fasting with fruits, सब लोग उठ जाइए। and fourth level of fasting जो है, fourth level of fasting, if you eat anukalpa prasadam means एकादशी प्रसाद without any grain। तो कल कोई ग्रेन मत लीजिएगा, ग्रेन मतलब राइस, दाल, सरसों, ठीक है। तो जो फास्टिंग नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स और जूस ले सकते हैं दिन में। और
रात को अनुकल्प प्रसादम है, रात को अनुकल्प प्रसादम आप 7 बजे ले सकते संध्या के समय अभिषेक के बाद। अगर आप बाई चांस नहीं आ सकते तो ऑनलाइन प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम इस्कॉन कोलकाता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में और मायापुर.tv में। ओके, हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन, कमेंट? तो कल इधर हम लोग मॉर्निंग प्रोग्राम करेंगे। तो मॉर्निंग प्रोग्राम तो सुबह हम लोग इधर मंत्र मेडिटेशन होगा, मंत्र मेडिटेशन 5 to 7 o'clock मंत्र मेडिटेशन होगा। फिर देन 7:20 to 8 o'clock इधर मंगल आरती होगा। तो जो लोग इधर आसपास रहते हैं तो आप लोग चाहे तो आ सकते हैं कल नरसिंह चतुर्दशी। अगर आप लोग शाम को आ सकते हैं गुरुसदय रोड, सो दैट विल बी वेरी नाइस। बहुत एंजॉय करेंगे। उधर बहुत सारे डिवोटीज आएंगे, 2-3 हजार डिवोटीज आएंगे, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। तो हमारे इधर सीनियर्स के साथ या आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ